टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर एटम एंड ए लेक्चर में एटम टा कम्प्लीटली पढ़ा +2 फिजिक्स सेकेंड ईयर सब्जेक्ट एटम। So in this chapter atom, first I am giving you a brief idea what exactly we will study in this chapter according to the syllabus. So first we will study Thomson's model. Then second we will study Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model, and then we will study the drawbacks of Rutherford, and then we will study Bohr's atomic model, Bohr's atomic model. Then its postulates, and hence we will derive the orbital derivation for orbital velocity, and the radius of the stationary orbit, and energy of an electron, and then frequency, wave number, etc. Frequency and wave number, and finally we will study the hydrogen spectrum and wave particle duality, and hydrogen spectrum. So in this chapter I will try to cover all of these topics. So first I will give you the idea about Thomson's model. Actually before Thomson's, J.J. Thomson's, you know it, J.J. Thomson who discovered the electrons, जे फास्ट इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करते तो सी गोटे मॉडल देते जहाँ को फास्ट एटॉमिक मॉडल भावे आम आज पर्यंत जानीचु जोटा कि ही प्रपोज द फास्ट एटॉमिक मॉडल। आ पूर्व भी बिफोर दैट द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द एटम आल्सो गिवन बाय बॉयल एंड डाल्टन डिस्कवर द एटम, but they did not give any model, that means how the positive and negative charges are distributed through the sphere or atom. So the first postulate, the first model is given by the Thomsons. This Thomsons, and before that Dalton already told that atom is spherical in nature, like the planet, like the universe. It is spherical in nature. Why spherical? Because the sphere has more stable and it occupies very lesser space. That's why it is a spherical in nature. Atom, we know that atom is the smallest particle of the molecule, and whole the universe is made up of the molecules. So Dalton को already कहते जे atom होची spherical. तो थॉमसन्स किंतु आटम रो फर्स्ट मॉडल प्रपोज करथिले, सो ताकू कह जाए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इन दिस थॉमसन्स J.J. Thomson's atomic model, he told that the atom is spherical in nature and the atom is electrically neutral. First thing is atom is electrically neutral and spherical in nature, which is given by the Dalton. And also Thomson's obeys the same thing. It is electrical neutral. We know that atom is not a charged body. Everything of the matter is consists of atom. It is neutral. That means number of positive charges is equal to number of
negative charges, and that negative charges is discovered by the J.J. Thomsons. And J.J. Thomsons gave a popular model, which is, this model is also known as plum pudding model. This also known as plum pudding model. It is also known as plum pudding model. J.J. Thomson model is plum pudding model. What exactly this model says? This is the starting of your syllabus. So the atom is spherical in nature. Atom is spherical in nature. So in this sphere, the positive charges, we know that atom consists of same number of positive and negative charges as it is electrical neutron. So in this sphere, the positive charges are distributed uniformly. That means the positive charges, that is, suppose I am giving a dotted line of positive charges. This positive charges is distributed uniformly. What exactly does it mean? Positive charges are distributed. Positive charges are distributed uniformly. What exactly it means? Uniform, uniform means what? ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ total population density means total number of people per area kilometer square, 1 kilometer square. तो population density होची 100. Let population density होची 100. बट मु जदि कहबी गोटाए किलोमीटर स्क्वायर रे 100 लोक अछंती तो 2 किलोमीटर स्क्वायर रे केते लोक रहबे? तो दैट मीन्स 1 किलोमीटर स्क्वायर रे जदि 100 लोक अछंती तो ऑब्वियसली 2 किलोमीटर स्क्वायर रे एरिया रे 200 लोक रहबे. सेमती मु कहि 5 किलोमीटर बा 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रे 1000 लोक रहबे. दैट मीन्स व्हाट एक्जेक्टली इट मीन्स? दैट मीन्स हियर द पीपल 100 by 1 kilometer is equal to 100 per 1 kilometer square is equal to 200 by 2 kilometer is equal to 1000 by 10 kilometer is equal to 100. That is density. This is density is, so population density means total people per volume or per area. So density is constant. This density constant means that it is uniformly distributed. If it is not uniformly distributed, we cannot say. जदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ना होता ताले गोटाए किलोमीटर स्क्वायर 100 लोक रहिले 2 किलोमीटर स्क्वायर 200 लोक रहबे. मे भी अधिक रही परंती, मे भी कम रही परंती, किंतु डेंसिटी डिफर करे. So density जदि कांस्टेंट रहबो ताले जदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन डेंसिटी विल बी कांस्टेंट. हियर आल्सो सेम थिंग. Here also the same thing. The positive charges are distributed uniformly. That means at any surface area, that means total charge per area remains constant. That is density constant. That means here density of positive charges is same as here density of positive charges everywhere. That uniformly distributed. He told that uniform distribution according to J.J. Thomson's. Second statement he told. What about the negative charges? He told that negative charges are arranged. Negative charges are arranged here and there, not uniformly, non-uniformly are arranged here and there. से कहले जे नेगेटिव चार्ज गुड़क आर arranged here and there. आमने कौन नेगेटिव चार्ज गुड़ा एणे तेणे हेकि अछंती माने एठी गुड़ा नेगेटिव चार्ज, एठी गुड़ा नेगेटिव चार्ज, एठी गुड़ा नेगेटिव चार्ज, एमती विभिन्न जगह नेगेटिव चार्ज गुड़ाक एणे तेणे कि अछंती. किंतु कहीं नेगेटिव चार्ज गुड़ा एणे तेणे कि अछंती? दैट मीन्स व्हाई दिस नेगेटिव चार्जेस आर here and there. He told that due to these negative charges at the starting of this atom, these negative charges are attracted towards the center of this uniformly charged sphere. ये uniform charged sphere रो center को attract होते ले. जितने center है all the negative charges are accumulated. That means से सब negative charges गुड़ा को repel करिया start करें because negative will repel to negative charge. So due to the heavy repulsion, these negative charges are just comes from the center and arranged here and there in this manner. He told, but it is not true. But later on it was modified and Rutherford model and then Bohr's model is there. So he told that due to that means
at starting the negative charges are attracted towards the center of uniformly charged sphere, towards the center of the uniformly charged sphere, towards the center of the sphere, and due to heavy repulsive force, they splitted out of the center hence distributed here and there, distributed or arranged here and there. It is the complete model of J.J. Thomson. He told that like this, first कहले the positive charge गुड़ा uniformly distributed, and second is negative charge गुड़ा एणे तेणे है कि sphere भीतर अछंती, and third कहले कहीं negative charge गुड़ा arranged in such a manner that they are not in a perfect manner. So he told that due to the repulsive force acting on the center, the electrons comes out. So in this way he gave his structure. So to understand this model, best example is watermelon. We know watermelon तरबुज जा कहती, तरबुज आम जदि दी फाड़ करदे वाटरमेलन को आज 2 pieces करदे, then we can get the watermelon, that is the fruits, red color जो watermelon भीतर थी the fruits, आ गोटे जिनस आम देखा तादे मंजी थी जोटा कि आम सीड्स कहे black color seeds थी, से सीड्स गुड़ाक एणे तेणे होगी था हाँ कि ना, एणे तेणे होगी था जो वाटरमेलन तो गोटे फिक्स डिस्टेंस न था एणे तेणे होगी था, बट वाटरमेलन जो फ्रुट्स गुड़ाक रेड कलर जोटा थाए जोटा कि आम खाइबार व्यवहार करूँ सेटा कौन हुए ना सेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स सब जगह सेम ये कि थाए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड. सो आम ये कहीपर जे वाटरमेलन से रेड फ्रुट गुड़ाक आम पॉजिटिव चार्जेस कहीपर आउ सीड्स गुड़ाक जो ब्लैक कलर थाए जो मंजी गुड़ाक वाटरमेलन तरबुजर ताको आम नेगेटिव चार्ज भी कहीपर. सो इट इज द complete of Thomson's atomic model. So we know that there is several drawbacks. That means first drawback is why electrons are attracted to the center. The first drawback, electrons कहीं के center आड़ू attract कले, so that then repulsive force जो से मत ले ले. तो second drawback is Rutherford second drawback find करते ले. से जब तो बड़ा experiment करते ले, जे most of the atom space vacant थिला. तमाने positive charges एने तेने ही ना दी. ताने पॉजिटिव चार्ज को जगह ही अच्छा आटम सारा डिस्ट्रीब्यूट ना दी तेणु ये बट ये डिमेरिट थॉमसन का पछरे क्लारीफाई है रदरफोर्ड का फर्दर रदरफोर्ड का डिमेरिट भी बोर के द्वारा क्लारीफाई है, बट इट इज द फर्स्ट proposed atomic model by J.J. Thomson. And then we will go for, I am erasing it, then we will go for Rutherford's atomic model. This Thomson's model also called as plum pudding model, popularly known as plum pudding model, and Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model. In Rutherford's atomic model, Rutherford told that the same things. First is Rutherford actually he has done an experiment with the help of his 2 students, that is Ziegler and Marsden. Also it is called Ziegler-Marsden experiment. Also it is called Ziegler-Marsden experiment is there. After observing some points of that experiment, से experiment किसी point observe कला पारे Rutherford conclusion में पहुँचे थे, और सही conclusion में Rutherford nucleus ही discover करते थे. तो फास्ट आम देखा रदरफोर्ड का से एक्सपेरिमेंट कौन थिला जोटा कि जहाँ आम कह फास्ट जिगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट होता कौन फास्ट ये एक्सपेरिमेंट
जिगर एंड मार्सडेन जो एक्सपेरिमेंट करते विथ द हेल्प ऑफ रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट रे से आटम को से मैंने कनसीडर करते आटम जो आटम को से आटम भितर कौन अच्छी ऑब्जर्व करने फास्ट से गोटे गोल्ड फाइल नहीं थे एज एन आटम से फास्ट यूज करते गोल्ड फाइल सो गोल्ड फाइल एम गोटे गोल्ड फाइल दिस इज गोल्ड फाइल and you know that gold AU 79 190 the mass number and this is atomic number and this gold file he used. Why he used gold file for his experiment? Gold file is a malleable material. Gold file of the ductility is high. Gold file ductility high. ये हाई डक्टिलिटी माने गोल्ड फाइल को आम जिते थिन करवा जिते पतला करिया सेते पतला करि परिबा देन यू कैन मेक as thin as possible to a gold foil that's why its ductility is high. सो से जो गोल्ड फाइल नहीं थिले तार थिकनेस बहुत कम थिला अप्रोक्सीमेटली थिकनेस जो थिला थिकनेस जो गोल्ड फाइल थिला मैं लिखि दउछि 0.2 माइक्रोमीटर थिकनेस बा एक्चुअली 0. it will be 2.1 into 10 to the power minus 7 मीटर. ये थिला गोल्ड फाइल ये थिला गोल्ड फाइल थिकनेस एते स्मॉल नहीं थिले कहीं डक्टिलिटी हाई तेणु से गोल्ड फाइल यूज करते अदर मटेरियल को अदर मेटल को छाड़ी तो ये से जो गोल्ड फाइल ने से गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट करने से गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ने गोटे लीड कैविटी भितर गोटे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये हूँ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सी एक्चुअल जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते दैट इज बिस्मथ दैट इज बिस्मथ से बिस्मथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये यूज करते कहीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज कले ना फर्दर न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ा जे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिस बिस्मथ इट कैन प्रोड्यूस अल्फा रेज कौन ना अल्फा रेज इट एमिट्स अल्फा रेज ये अल्फा रेज कौन ना गोटे हीलियम एटम द मास 4 एंड पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्जेस सो अल्फा रेज आर पॉजिटिव चार्जेस 2 पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन चार्ज is 1.6 × 10 - 19 coulomb it is 2 positive charges that means alpha is the you can consider as 2 proton like that. So ये अल्फा रेज को एमिट करने सी गोटे नहीं थे बिस्मथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं थे तापर ये अल्फा रेज को से गोटे ब्रेकर माध्यम स्प्लिट कले कौटी गोल्ड फाइल वेरियस रेज विल बी स्प्लिटेड थ्रू द गोल्ड फाइल से रेज को से अल्फा रेज को सपोज अल्फा रेज को से एमती स्प्लिट करते थ्रू ए ब्रेकर एंड ये ऑब्जर्व करने गोटे स्क्रीन देते से स्क्रीन जो अल्फा रेज जो स्क्रीन उपरे पड़ इट विल बी फॉल्स ऑन द स्क्रीन द अल्फा व्हेन अल्फा रेज फॉल्स ऑन द दिस स्क्रीन ZNS जिंक सल्फेट स्क्रीन देन इट विल बी ये गोटे माने छोट छोट ये ब्लिक कर ये से गोटे माइक्रोस्कोप भी यूज करते ये देखापी यहाँ को डार्क कर देते पूरा एक्सपेरिमेंट कौच यहाँ को डार्क कर देते पेस्टा को डार्क कर देते ये गोटे माइक्रोस्कोप स्टूडेंट जन ऑब्जर्व करते जे केते अल्फा रेज आसिक आपको क्रॉस करुच्ची गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके स्क्रीन उपरे पड़ुचे से देखुले फास्ट ऑब्जर्व कले सो ये ऑब्जर्वेशन रे से देखिले मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज देन ऑब्जर्वेशन को आसवा ऑब्जर्वेशन कौन था मैं एक्सपेरिमेंट तो कहीदेली ऑब्जर्वेशन कौन था कौन से देखिले यही ऑब्जर्वेशन से देखिले मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अबाउट ये 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 99.86% मैंने अप्रोक्सीमेटली ऑल ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जस्ट crossing the gold foil in a straight way straight way means not deviated any angle that means 0 degree angle of the line that means straight line this is crossing this is straight line
no deviation below 1 degree angle. Observation is below 1 degree angle. So 99.86% of alpha rays crossing without any deviation, crossing in a straight line without any deviation. ये तंगरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थिला तामने से ऑब्जर्व करया कथा जे 99.86% जदि गोल्ड फाइल से विदाउट एनी ऑब्स्टैकल जदि ये रे एंटर करूची ता माने ये जगहटा वैकेंट अछि. दैट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ प्लेस विल बी वैकेंट. से गोल्ड फाइल एतिकी एरिया एतिक एरिया वैकेंट अछि. ये एरिया रे किछि भी सेमती हेवी मटेरियल नाही, हेवी पार्टिकल नाही कि किसी पॉजिटिव चार्ज नाही. मेन जिनस ये होची किसी पॉजिटिव चार्ज नाही. देयर इज नो पॉजिटिव चार्जेस इन दिस एरिया बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव चार्ज. अल्फा पार्टिकल इज ए पॉजिटिव चार्ज. सो जदि ये पॉजिटिव चार्ज था ताली ये डेविएट करता कहीं पॉजिटिव रिपेल टू इच अदर. तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं. फर्स्ट कंक्लूजन से पहुँचले. सो रेस्ट जो रहा आमर 0.14% ये डेविएट करियंती of alpha particles. 0.14% of alpha particles, I am just writing here. 0.14% of alpha particles are deviating more than 1 degree angle. 0.14%. ये तो डेविएट कर ले मोर देन 1 डिग्री. दैट मीन्स लाइक दिस deviation like this in this way they are deviating. So 0.1% of alpha particles are deviating from more than 1 degree angle. So ये जो 0.14% आंक भीतर भी this 0.14% आंक भीतर भी ये 0.14% रु पुणी 1 in 80,000 8,000 रु गोटाए 1 in 80,000 8,000 रु गोटाए अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री रु अधिकार बेंड कर माने ऑफ अल्फा पार्टिकल मु गोटे कथा कहूँ 0.14% रही तमें केते कम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 1 in 8,000 ऑफ अल्फा पार्टिकल्स reflected back that is refracted at more than 90 degree angle. किमती 90 degree angle, more than 90 degree angle. That means 90 degree angle means this angle is 90 degree. 90 degree this angle is 90 degree. 90 degree अधिका means कौन से पूरी रिफ्लेक्ट है कि स्क्रीन में पड़े रिफ्लेक्ट है बैक इंगी पड़े आसवे. तो 90 डिग्री अधिका एंगल 1 डिग्री तो अधिकार 0.14%. 0.14% रु 1 in 8,000 रे 90 डिग्री अधिका एंगल रे 90 डिग्री अधिका एंगल माने रिफ्लेक्ट कले माने रिफ्रैक्टेड हो गले कोडी बैक को आसले आड़ी. तापरे very less that is very less means 1 mega that is equal to 10 to the power 6. That means 1 by 10 to the 6 alpha particles bounce back. That means bounce back means very less. Just when it bombarded to this point, it comes to again this direction. That means 180 degree angle reflected by 180 degree angle. That means first 90 more than 90 degree angle 1 in 8,000 and 1 by 10 to the 6 alpha particles reflected back by 180 degree angle. That means bounce back 180 degree bounce back. तमने से ऑब्जर्व कौन कले मैं लिभे दूची तांगर ऑब्जर्वेशन नोट आउट कर दियो जते रहिला मैं लिभे दूची ऑब्जर्वेशन तब ना तब कंक्लूजन प्लस कंक्लूजन व्हाट इज द कंक्लूजन.
देख जितेबाला एते परसेंट अल्फा पार्टिकल्स क्रॉस करीगला तमें मोस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ द गोल्ड फॉइल बा ऑफ द आटम is empty that means vacant most of the place first conclusion of most of the place and very little space आ गोटे कथा जो गोल्ड फॉइल जोटा 180 डिग्री एंगल रिफ्लेक्ट कला 90 डिग्री मोर एंगल रिफ्लेक्ट कला मुझे नौ चित्र कर दूची दैट इज गोल्ड फॉइल जितेबाला मोर देन 180 डिग्री एंगल रिफ्लेक्ट कला बा 1 डिग्री एंगल धर मोर देन 1 डिग्री एंगल फास्ट धर रिफ्लेक्ट कला देख ये रिफ्लेक्शन कहीं ये तो रिफ्लेक्शन ही नाला ये रिफ्लेक्शन कहीं देख ये जगह निश्चिंत ये जेहतु अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज तो यही जगह कौटी गोटे पॉजिटिव चार्ज अच्छी तेना गोटे हेवी मास पॉजिटिव चार्ज अच्छी आ जो पॉजिटिव चार्ज पाई ये सब जाक रिपेल कर that means डेविएट कर एंगल तो पॉजिटिव चार्ज आसला माने ये अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज तेणु ये रिपेल कर तेणु ये हूँ कनक्लूजन तक जे तो समवेयर मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आर देयर बट ये जगह पॉजिटिव चार्ज ना जेहेतु अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट वे जाऊँगी तो ये जगह पॉजिटिव चार्ज अच्छी दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज अच्छी आ जोटा 180 डिग्री रु बा मोर देन 90 डिग्री एंगल रिबाउंस कर दैट मीन्स डायरेक्टली स्ट्राइक्स टू द दैट टीनी स्मॉल एरिया जब ये स्मॉल एरिया को क्रॉस कर डायरेक्टली बैक कर माने कंक्लूजन कौन है ताने वेरी स्मॉल एरिया where all of the positive charges and almost all of the masses of the atom is present. all of the masses देख जितेबाला ये जगह से स्ट्राइक कला अल्फा पार्टिकल एनर्जी थिला जो अल्फा पार्टिकल एंटर कराइला अल्फा पार्टिकल एनर्जी थिला 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हाई एनर्जी जितेबाला बम्बार्ड होती ये तो क्रॉस कर जावा कथा गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर पानी तामाने एटी गोटे हेवी मासिव बॉडी अच्छी ये गोटे हेवी मासिव बॉडी तामाने ये जगह पूरा आटम यही जगह ही मासटा कनसीडर करा ऑलमोस्ट ऑल द मासेस आर देयर नाले केबे रिबैक करनी जोटा कि बाउंस बैक कर 180 डिग्री एंगल से रिबैक कर न था जदि ये लाइटर था हेवी न था तो क्रॉस करता डेविएट सम डेविएशन रे किसी डेविएशन को क्रॉस कर जाता किंतु जेहेतु रिबाउंस कर हेवी मास अच्छी कहीं अल्फा पार्टिकल एनर्जी बहुत हाई था तथापि रिबाउंस कला से पॉइंट रे तेणु से पॉइंट तापर ये जगह आउ तो जो वैकेंट 99.86% तो पॉजिटिव चार्ज ना कहीं स्टेट रे गला तो ऑलमोस्ट ऑल पॉजिटिव चार्ज सही अच्छी all of the positive charges and almost all of the masses of the atom is present in that small area and that is called core of the atom known as nucleus so nucleus is discovered by Rutherford so nucleus consists of nucleus भीतर ही mass total mass रोची जोटा बहुत स्मॉल एरिया 0.14% भी आउट कम कना 180 डिग्री जोड़ी बा मोर देन 90 डिग्री बैक करची सेटा ही तुम रोची को कोर पर्सन दा न्यूक्लियस ता तेणु ये न्यूक्लियस ही टोटल मास कंसीडर करा जोटी कि न्यूक्लियस भीतर न्यूट्रॉन अच्छी आ पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन करा and in this way the Rutherford's model the conclusion he concluded these things and finally he told I'm erasing it Rutherford told that the total atom is electrical neutral total number of positive charge is equal to total number of negative charge that is the clear second thing is the vacant space consists of electrons जदि से मास रे पॉजिटिव चार्ज रोची तो नेगेटिव चार्ज कोड रहा
भैकेंट रे तो भैकेंट रे कौन मास ना जेहेतु भैकेंट स्ट्रेट ओएर जो पलाऊँगी कौन डेविएट ना अल्फा पार्टिकल तमें से भैकेंट रे कौन अच्छी नेगेटिव चार्जेस अच्छी आ से नेगेटिव चार्ज मास बहुत कम कहीं अब्स्ट्राक्ट करना एंड से कहले द नेगेटिव चार्जेस आर रिवॉल्विंग आर moving around the nucleus as the planet moves around the sun से कहले जमती सन चारिपटे प्लानेट गुड़ा मूव कर अर्थ प्लानेट मूव कर सेमती न्यूक्लियस चारिपटे इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा मूव कर इन मोशन इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स मास जब आम कह इलेक्ट्रॉन्स मास इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻³ -31 kg. So it is the mass is very negligible. So सेमती से मूव करती क्या अराउंड रे न्यूक्लियस चारिपटे सेठू जिते जड़े इन सर्कुलर मैनर द नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस in a circular जमी अर्थ गुड़ाक अर्थ जमी सन चारिपटे सर्कुलर मैनर मूव करमती ये भी सर्कुलर मैनर मूव करती एजम्पशन आउ से सर्कुलर मैनर जोटा मूव कर जो आम जानी जो गोटे पार्टिकल सर्कल मूव कर सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छी ये भी आउ गोटे कथा क्लीयर हो आई एम इरेजिंग दिस वन ये आउ गोटे कथा क्लीयर होची जे जदि एटा न्यूक्लियस जदि सपोज ये गोटे इलेक्ट्रॉन्स मूव करुच्ची दैट मीन्स दैट इज पॉजिटिव चार्ज ये तो होल पॉजिटिव चार्ज है सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड तो ये टोटल चार्ज के न्यूक्लियस चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू जेड is charge of one proton or one electron is negative proton is positive but same charge magnitudically same so it is जेडी चार्ज ये इलेक्ट्रॉन गोटे चार्ज तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी कूलम्ब्स लॉ रे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करुच्ची जो मूवमेंट जो सेंट्रीपिटल फोर्स होची ताको प्रोवाइड किए करुच्ची इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स जो आसिलेट करुच्ची इलेक्ट्रॉन्स आसिलेट्स इन ए सर्कुलर मैनर इलेक्ट्रॉन्स accelerates in a circular manner as A is equal to v square by r. We know that force is equal to mass into acceleration and centripetal force is equal to mv square by r. Here v square by r is acceleration, here v square by r is acceleration. The same thing is that electron accelerates in a circular manner as A is equal to v square by r around the nucleus. So he told Rutherford's total conclusion, and it is the what Rutherford told about the nucleus and the electrons. Then we will come to the drawback of Rutherford. I am erasing it. Drawback of Rutherford. देखो ड्रॉबैक कौन रहा ड्रॉबैक मेनली दीटा ड्रॉबैक अच्छी रदरफोर्ड का दीटा ड्रॉबैक अच्छी प्राय समस्त गोटे जानते आरटा भी अच्छी दीटा ड्रॉबैक अच्छी फास्ट ड्रॉबैकटा देखा आम फास्ट ड्रॉबैक हूँ जदि जदि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ रे मूव कर अराउंड द न्यूक्लियस तामाने इलेक्ट्रॉन्स तो कन्स्टांटली एनर्जी रेडिएट करिवो जदि मूव कर दैट मीन्स here nucleus is there. If electrons moves here electrons is there continuously constantly move करछि according to electromagnetic theory it will radiate the energy and जदि एटा एनर्जी रेडिएट करिवो गोटे पार्टिकल गोटे लाइट गोटे एनर्जी रेडिएट कला ता माने इट लूजेस एनर्जी लूज करिवो देयर इज ए चांस ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी ता माने इलेक्ट्रॉन्स जतबे एनर्जी डिक्रीज करिवो ताने इलेक्ट्रॉन्स जतबे एनर्जी डिक्रीज करिवो इट विल make a spiral path and finally or eventually it will fall on the nucleus
जदि न्यूक्लियस ऊपर जदि इलेक्ट्रॉन फॉल करिवो देन whole atom is by atomic model everything will collapse. That means it is unstable, but we know that atom is stable. It cannot explain about the stability of atom, cannot explain about the stability of atom, stability of atom as why as electron continuously radiates energy, there is a chance of there will be decrease in energy of an electron, and it will make a spiral path. You would a spiral path follow karibo and comes closer to the nucleus, and finally falls on nucleus. Finally nucleus upore fall karibo tamne atom total unstable he jibo, but atom collapse he jibo, but we know that atom is stable. So ये तो रदरफोर्ड को फर्स्ट डिमेरिट थिला कहीं ना आम देखा ये जो पॉजिटिव चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रोचे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्टेड एंड कम्स क्लोजर टू लाइक ए स्पाइरल पाथ क्लोजर टू एंड फाइनली फॉल्स द न्यूक्लियस. ये तो फर्स्ट डिमेरिट थिला. सेकंड डिमेरिट थिला तांकर सेकंड डिमेरिट जोड़ा थिला दैट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन. रदरफोर्ड कुड नॉट explain about the line spectrum, line spectrum माने जदि इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक ऑल फ्रिक्वेंसी रे जदि इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक सी कहते सर्कुलर पाथ मूव करती गोटे फिक्स्ड पाथ ना जदि सर्कुलर पाथ मूव करती ऑल पॉसिबल पाथ अच्छी जदि ऑल पॉसिबल पाथ रे इलेक्ट्रॉन्स मूव करती इलेक्ट्रॉन जो रेडिएट एनर्जी कर जानते आम एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी. दिस इज फ्रिक्वेंसी. सो ये जो फ्रिक्वेंसी जो रेडिएट कर इलेक्ट्रॉन जो फ्रिक्वेंसी रेडिएट कर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसी रेडिएट कर जदि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसी यदि इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट करुच्ची ऑल पॉसिबल वेवलेंथ भी एंड यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा. जदि ऑल पॉसिबल वेवलेंथ रोची ऑल पॉसिबल दैट मीन्स कंटिन्यूअस वेवलेंथ. सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रम कहीं आम जाने आटम रे आम नेक्स्ट पढ़ा आटम रे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम. आटम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट द इलेक्ट्रॉन्स energy radiates the energy in the manner of discrete wavelength. The wavelength is in a discrete manner, but he told that the wavelength is continuous. The light energy is discontinuous. It is a discrete wavelength. But line spectrum, according to him, line spectrum is continuous, but it is discrete wavelength, but it contains discrete wavelength. Not continuous wavelength, discrete wavelength. Discrete wavelength में कहीं कहली कहीं discrete wavelength ये जे जदि इलेक्ट्रॉन्स सब पॉसिबल पाथ रे मूव करेंगे ताले सब पॉसिबल फ्रिक्वेंसी हम सब पॉसिबल फ्रिक्वेंसी मीन्स ऑल पॉसिबल फ्रिक्वेंसी दैट इज कंटिन्यूअस, बट इटा कंटिन्यूअस डिस्क्रीट. ये मेनली दुईटा ड्रॉबैक थिला. देन विल गो फॉर द बोर्स एटॉमिक मॉडल. देखिए आम बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर्स कौन कहते द फाइनली विल स्टडी बोर्स एटॉमिक मॉडल. And Rutherford told that discovered the nucleus and the diameter of nucleus is equal to 10 to the power minus 14 meter approximately. एतिक थिला diameter of nucleus. Then
come to the Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. बोर कौन कहते बोर्स आटमिक मॉडल बोर्स कहते जे सी कहले इलेक्ट्रॉन्स गुड़ा एनी पॉसिबल पाथ रे मूव करते सर्कुलर वे रे बट बोर कहले इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए फिक्स्ड पाथ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल सॉरी atom is electrical neutral atom is electrically neutral means what that means total number of positive charge is equal to total number of negative charge and the center of atom which is called as nucleus it contains all the positive charges and most of the mass almost all the mass of the atom. Say nucleus is the first point हमें जानी second से कहले electrons moves in a fixed orbit electrons move in a fixed path called as stationary fixed circular path called as stationary orbit. Stationary orbit means the angular momentum is constant, that is integral multiple of h by 2 pi, that is stationary, because at the fixed circle, that means the diagram here is nucleus and the electrons can move. Here electrons can move in this state, in this orbit, that is suppose k cell, we told L cell, M cell, N cell, in this way. These electrons will move in k cell, that means it is fast orbit, and electrons cannot move in between this. The electrons cannot move in this between this, but electrons can move in this cell or this cell or this cell. Whenever the electrons moves in this cell, it does not radiate any energy. That means ଯେତେବେଳେ electrons jump କରିବ ଗୋଟେ cell ଆଉ ଗୋଟେ cell, it radiates energy ବା it gains the energy ସେତେବେଳକୁ radiate କରିବ ବା gain କରିବ. But ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ fixed orbit ଯାଉଛି ତାର angular momentum constant ରହୁଛି, that is the postulate, that is the angular momentum of an electron, angular momentum of an electron is equal to the integral part of h by 2 pi, where h is equal to Planck's constant, and this h by 2 pi, that means what? The angular momentum is L is equal to mvr. This is angular momentum is equal to integral multiple means n, h by 2 pi. So integral means integer, that is n may be 1, 2, 3, etc. So this condition must be satisfied by an electron whenever it is moving through the stationary orbit. Angular momentum is constant, that is integral multiple of h by 2 pi. And third is he told that तापर से कहले जे ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करुचे सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मूव करुचे ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स होची एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक हियर देख पॉजिटिव चार्ज अछि न्यूक्लियस आ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज ताको तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहउची ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स सेम थिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इरेज कर दो जेरा दैट मींस force of attraction between nucleus and electron provides the centripetal force. That means centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction by Coulomb's law.
ये गोटे इक्वेशन आम लिखिपर सेंट्रिपिटल फोर्स फर्मूला कौन थी mv स्क्वायर बाय आर mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू यार चार्ज Ze इलेक्ट्रॉन चार्ज E दिस इलेक्ट्रॉन q1 q2 बाय r स्क्वायर k इज 4πε0 r स्क्वायर तो ये मुझे नेगेटिव चार्ज अच्छी इलेक्ट्रॉन्स मुझे पॉजिटिव नहीं कहीं ये अट्रैक्शन आम जाचे नेगेटिव पॉजिटिव ओनली फॉर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन नेगेटिव चार्ज इज फॉर अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव चार्ज फॉर रिपल्सन तेणु mv स्क्वायर बाय r इज सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑल्सो अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड द सेंटर अच्छा तो ये आम गोटे जिन कंप्लीट जानिले mv स्क्वायर बाय r इरेजिंग mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू Zd स्क्वायर बाय 4πε0 r स्क्वायर ये सेंट्रिपिटल फोर्स जदि मुझे r कैंसल कर दूसरी देन इट विल बी mv स्क्वायर इज इक्वल टू Zd स्क्वायर बाय 4πε0 r ये फास्ट आप पूर्व आम गोटे इक्वेशन देखते सेटा थिला कौन mvr द मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज nh बाय 2π ये सेकेंड इक्वेशन लेट mvr इज इक्वल टू nh बाय 2π यहाँ आम नेक्स्ट लास्ट देखते सो ये दुईटा इक्वेशन रू कौन देखिले वेलोसिटी और रेडियस आम कैलकुलेट करदे ये वेलोसिटी रेडियस कौन ना जो इलेक्ट्रॉन्स गोटे फिक्स्ड ऑर्बिट मूव कर वेलोसिटी केते जो गोटे इलेक्ट्रॉन्स से ऑर्बिटर डिस्टेंस न्यूक्लियस केते दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बा स्टेशनरी ऑर्बिट रेडियस केते न्यूक्लियस सहित डिस्टेंस केते तो ये हम देखा ये के सेल n इज इक्वल टू 1 हियर l सेल n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 3 दिस nh बाय 2π आम ये देखा गोटे कथा तो मुझे v कैलकुलेट करी आगु सिंपल डिवाइड करदे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 आम ये कौन पाई mv स्क्वायर बाय mvr इज इक्वल टू Zd स्क्वायर बाय 4πε0 r इंटू 2π बाय nh आम राइट तो r तो कटिज mv गोटे v रहा ये v इज इक्वल टू के 2π 2 रहा तो Zd स्क्वायर बाय 2ε0 nh ये हूँ फर्मूला हूँ वेलोसिटी n जदि 1 दबा तो के सेल वेलोसिटी केते n 2 देले l सेल केते तो ये vn दे दबा तो nth सेल रे इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी केते ठीक अच्छे देन रेडियस देखा तो रेडियस कैलकुलेट करने आम देखा स्क्वायरिंग करदे n स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर आम राइट अदरवाइज सब्स्टिट्यूट v को सब्स्टिट्यूट कर तो कर इक्वेशन 3 इट इज इक्वेशन 4 ये देख मुझे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 रे डिवाइड करुच्ची मत कौन मिल इक्वेशन 3 डिवाइड करिया इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1 जदि मुझे डिवाइड करुच्ची इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1 जदि मुझे डिवाइड करुच्ची ये मत कौन मिलूँ देखिए इक्वेशन 3 हूँ mv स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय इक्वेशन 1 हूँ mv स्क्वायर सॉरी ये लिखिद m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय mv स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर इंटू mv स्क्वायर डिवाइड करचे तो 4πε0 r स्क्वायर बाय Zd स्क्वायर देख ये के 4π गोटे पाई रही देख mv स्क्वायर कटिज v स्क्वायर कटिला m गोटे रही एम आर स्क्वायर के रही n ε0 ये r स्क्वायर भी कटिज सॉरी m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 4πε0 ये r स्क्वायर नाला ये r थिला ना ये r स्क्वायर नाला ये r थिला आम राइट ये r थिला कहीं ये गोटे कटि जाइए ना mv स्क्वायर ये r जदि आम देखा ये गोटे r कटिज r स्क्वायर गोटे r कटिज तब एम आर इज इक्वल टू के ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय ये के पाई पाई Zd स्क्वायर तो r इज इक्वल टू के ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर बाय m पाई Zd स्क्वायर इट इज द फॉर्मूला nth सपोज r nth तमाने रेडियस ऑफ के सेल जब के सेल रेडियस देखा ताले ये केते एम ये n इज इक्वल टू 1 पुट कर तो ये देखो ये सब कांस्टेंट बट इट इज एप्लीकेबल इन हाइड्रोजन आटम और हाइड्रोजन लाइक आटम से कह हाइड्रोजन लाइक आटम माने कौन हाइड्रोजन लाइक आटम इज हीलियम प्लस माने इलेक्ट्रॉन इज 1 दैट इज हाइड्रोजन लिथियम 2 प्लस
हाइड्रोजन लाइक एटम, ये हाइड्रोजन लाइक एटम रे एप्लीकेबल। ये देखो जेड हाइड्रोजन एटम रे हाइड्रोजन लाइक एटम रे जेड इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 and n is substitute the cell k or l or m cell, then all are constants, see that, except all are constant, that means rn is directly proportional to n square by z, n square by z, and these all are constant, that is rn is equal to approximately 0.53 n square by z angstrom, angstrom means 10 to minus 10। ये हूँ मैंने कम जदि एन 1 जेड इजिकल 1 हाइड्रोजन आटम रे फर्स्ट केस जो देखा तो 0.53 रेडियस, तो रेडियस हूँ हाफ आंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स वी नो दैट हाइड्रोजन आटम रो डायमीटर केते 1 आंगस्ट्रॉम, तो ये हाफ आंगस्ट्रॉम हूँ रेडियस, ठीक है नहीं, तो ये गोटे प्रूफ पाइले हाइड्रोजन आटम रो डायमीटर हूँ केते 1 आंगस्ट्रॉम, कहीं एन 1 नब हाइड्रोजन पे जेड इजिकल 1 नब एन नम फॉर फर्स्ट सेल, तो ये आर एन कंप्लीट। एंड सिमिलर Vn जदि आपको आम देखा जदि Vn को सिंप्लीफाई भी आउट करवा तो Vn इज सी मल्टीप्लाई करिया जेड सी मल्टीप्लाई कर ई स्क्वायर बाय 2s0 तले भी सी इजिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सी 2s सी NH जदि आपको नवा तो ये इक्वेशन भी ये कौन ये सी डिवाइड बाय ये सब कन्स्टाट हो सी डिवाइड बाय 137 इंटू जेड बाय एन इज Vn, यहाँ भी Vn हो, तो ये हम देखिए जब डायग्राम करिया गोटे डायग्राम करवा Vn रो डायग्राम करिया Vn द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द ऑर्बिट Vn इज इक्वल टू Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई Vn इज डायरेक्टली जेड बाई एन एंड Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, n स्क्वायर बाई जेड, तो आर ग्राफ केमती हम विथ रेस्पेक्ट टू n यहाँ n जो दबा यहाँ जो Vn दबा आर ग्राफ केमती हम हाइपरबोला, दैट मीन्स n जो डिक्रीज कर Vn इंक्रीज कर Vn डिक्रीज कले n इंक्रीज कर, तो हम देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन z इज कांस्टेंट हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन हम टेकिंग एंड हियर जदि सेम जिन देखा z इज इक्वल 1 दबा तो Rn इज इक्वल टू केमती हम पाराबोला यहाँ हम के Rn इजिकल n स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ हम n स्क्वायर यहाँ हम Rn, तो ये हूँ ग्राफ परीक्षा पढ़ी पारे, तो ये हूँ वेलोसिटी ये हूँ रेडियस ऑफ एन एटम, और आप आम कैलकुलेशन करवा तार एनर्जी केते तार एनर्जी केते आउ तार फ्रिक्वेंसी केते एंड वेव नंबर केते, ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आम जा ये था इक्वेशन Vn Rn दरकार हम, तो नेक्स्ट एनर्जी देखा मुझे सर्टकट्रे कहीदे एनर्जी देखा जदि आम तो काइनेटिक एनर्जी देखिए जदि आटम रो तो हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो ये mv स्क्वायर तो ऑलरेडी अच्छे हम पाखे तो हाफ करदे दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर आनी पुट कर दूँ डायरेक्टली जेड स्क्वायर बाई तो हाफ को काट दे 4 8 हो हम राइट 8 पाई s0 r स्क्वायर हम राइट हो ना नहीं, तो ये सॉरी r स्क्वायर नहीं r जेड स्क्वायर बाई 8 पाई s0 r, तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आम जानी के पोटेंशियल पढ़ते इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई s0 इंटू r, देखा केमती ना इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल एनर्जी जेड हूँ टोटल न्यूक्लियस चार्ज माइनस हूँ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी q1 q2 बाई 4 पाई s0 r, तो q1 हियर इज जेड एंड q2 इज माइनस e, तो हियर इज पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल एनर्जी देखिए इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इन एन ऑर्बिट गोटे ऑर्बिट के एनर्जी इज इक्वल टू e k प्लस EP टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जो देखा जेड स्क्वायर बाई 8 पाई s0 r माइनस ऑफ बिकॉज माइनस हियर माइनस इज देयर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाई 4 पाई s0 इंटू r, तो आपको जब आम सिंप्लीफाई करदे आपको जब आम सिंप्लीफाई करदे ये हो माइनस जेड स्क्वायर बाई 8 पाई s0 r, ये हूँ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स एन ऑर्बिट एन जो वैल्यू पुट करी जेड स्क्वायर बाई तो जेड स्क्वायर बाई 8
by epsilon naught r. So here is this r देखो ये r आम सब्स्टिट्यूट करने एन r भितर r टा देखो r n इजिकल केते अछि epsilon naught n square h square by m pi z square जदि r n आम r वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दवा एटी n पळे आसीबो हां कि ना तो जदि सब्स्टिट्यूट करो देन e n is equal to आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग रिमूव कर दो सब खाली r n वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दवा जब फाइनली हम एनर्जी पाई जिबा देन जा रहिबा हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करिबा जा रहिबा तार फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन वेव नंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ता सब नेक्स्ट क्लास कैलकुलेट करिबा जे नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिबा एबे देखिबा en जदि एति लागू पुट करो en इज इक्वल टू -z स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई epsilon naught r पुट करो एटी गोटे कथा लक्ष्य करो en होची -z स्क्वायर बाय 8 पाई epsilon naught r पोटेंशियल एनर्जी -z स्क्वायर बाय 4 पाई epsilon naught r काइनेटिक एनर्जी होची z स्क्वायर बाय 8 पाई epsilon naught r तो एटी गोटे रिलेशन अछि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पोटेंशियल एनर्जी am I right होची ना नहीं इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज नेगेटिव प्रूव्ड yes or no then r value put करो epsilon naught n square h square by m pi z square आपको हम पुट कर सारा पर आम पाखे फॉर्मूला अच्छी en इज इक्वल टू सब कांस्टेंट काट सारा पर -13.6 बाय n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूनिट होची इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब कांस्टेंट epsilon naught 8.854 × 10⁻12 farad per meter हमें जानी चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज हियर z फॉर z स्क्वायर z into z square and e square will cancel and then epsilon naught so all are the e value e square not cancel e for the e value is 1% × 10⁻19 coulomb and all value we know that so that is will come 13.6 and n square will be they are inversely proportional and z square is there. That means जदि आम गोटे स्पेक्ट्रम ड्रा करिया लास्ट गोटे मिनट में सार देवा जब देखा एनर्जी स्पेक्ट्रम एटू आम देखा एनर्जी स्पेक्ट्रम देख फास्ट भाई हाइड्रोजन आटम बाय z इज इक्वल टू 1 जदि फास्ट सेल देवी हाइड्रोजन आटम बाय en केते हिजबो -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन n इज इक्वल टू 1 जदि n इज इक्वल टू 1 नबा दैट इज k सेल n इज इक्वल टू 1 जदि मन होची तो e 1 केते हिजबो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेल n इज इक्वल टू 2 एटा k सेल l सेल n इज इक्वल टू e2 केते हिजबो दे कैलकुलेट कर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेंड n इज इक्वल टू 3 e3 हिजबो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेंड n इज इक्वल टू 4 e4 हिजबो -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.5 नहीं -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट n दिया जबा n इज इक्वल टू इन्फिनिटी कर दवा तो en केते हिजबो e इन्फिनिटी केते हिजबो 0 एस नो डिक्रीज करछि ताले एठी हम देखिबा कोन मु फास्ट के सेल देखा सेलटा केंद बनउछि देखा एठी तो एटी फास्ट एनर्जी के थिला एटी एनर्जी थिला हमर -13.6 एटा के सेल E1 होजी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2 होजी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन विल कम -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एठी हम देखले कोन ना जते रेडियस बढ़िबो देखलो रेडियस सहित वेलोसिटी रेडियस सहित केमि थिला इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस दैट मीन रेडियस जिते बढ़िबो दैट मीन्स जेतबे इलेक्ट्रॉन्स गुडाक न्यूक्लियस रु जिते दूर को जीवे ता वेलोसिटी जिते कमिबो ता न्यूक्लियस पाखे हाई वेलोसिटी रहबो दैट इज द लिनियर मोमेंटम दैट इज विल कांस्टेंट सो सेटा हम देखले तापर एठी देखो एठी एनर्जी जेतबे ऊपर ऊपर जाउ एनर्जी कमी जाउची जदि एनर्जी गैप देखबे एठी एनर्जी गैप देखिबी फास्ट सेल देखा एनर्जी गैप इट विल बी के सेल L cell, M cell, N cell, O cell, it will be approximately 13.6 minus 3 point energy gap. It will plus H because minus 3 by E2 minus E1 energy gap E is equal to E2 minus E1
हायर माइनस लोअर जी राडिएट कर एनर्जी जी राडिएट कर जो हायर रु जो इलेक्ट्रॉन्स हायर रु लोअर को मूव कर इट विल एमिट्स एनर्जी दैट मीन एनर्जी लूज कर जो लोअर रु हायर को जीव जो एनर्जी गेन कर ये हूँ बोर्स का एटॉमिक मॉडल तापर ये हूँ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस एठी देख एमती आसपार पराप्स देख 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जिते ऊपर जो कमी कमी जीव तो एमती ऑर्बिट फास्ट ऑर्बिटा डिस्टेंस हाई रहा कम एनर्जी कमी 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 जीव एंड इनफिनिटी एनर्जी हो जीरो so it is the calculation of energy and then we will calculate this frequency E is equal to h nu and total energy and then we will calculate the wave number, then we will go for the hydrogen spectrum and wave particle duality. So in this way we will conclude the topic today's lecture. Thank you.